p subshell. S subshell has only one orbital. Class नाम बोलो उसका. Second shell का s orbital. 2s orbital. S orbital. Very good. Because it is of second shell, right? The 2s orbital has maximum capacity of 2 electrons. right. P subshell has px orbital, py orbital and pz orbital. pz. बराबर है? pz. The class since it is of second shell, right? 2px, 2py and 2pz. So p subshell has total 3 orbitals. Second shell का p subshell. तो second shell के p subshell में 3 orbital है. px, py and pz. तो 2px, 2py and 2pz. Anybody shape of p orbital? क्या नाम दिया उसको हम लोगों ने? Shape of p orbital is called dumbbell shape. dumbbell shape. We call that shape as a dumbbell shape. Good. Double shape. Okay. The px orbital can have maximum 2 electrons. P orbital can have maximum 2 electrons. pz orbital can have maximum 2 electrons. So total electrons in p subshell are 6. And s subshell are 2. And total capacity of second shell is 8 electrons. 8. Right? Plus, if you go in third shell, starting from nucleus, third shell has s subshell, p subshell, and d subshell, right? S subshell. So S subshell can, okay, S subshell has which orbital? S orbital. क्या नाम देंगे S orbital का बच्चे लोग? ps orbital. ps orbital. Maximum 2 electrons. Electrons. P subshell. 6 electron. P subshell has 6 electrons, right? तो कहाँ पे जाएंगे बच्चे लोग? 3px बराबर है? P subshell C orbital, px orbital, py orbital and pz orbital. पर क्लास वो थर्ड शेल का इसलिए 3px, 3py and 3pz. So 3px orbital has 2 electron maximum, 3py maximum 2 electron, 3pz also maximum 2 electron. Total electrons 6 electron, right? Okay, क्लास थर्ड शेल में और कौन सा सबशेल होता है? d D subshell. subshell. सर एक बेसिक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन. क्या सेकंड शेल में डी सबशेल होता है? नहीं सर. फर्स्ट शेल में पी सबशेल होता है? yes sir. no sir, no. No. क्योंकि these things are very very important for next topics जब आप 12th में जाओगे तो. तो डी सबशेल has capacity of 10 electrons and d orbitals कितने हैं बोलो? 5 है. dxy, dyz, DZ. xz, हाँ xz भी बोल सकते हैं. dx2 y2 and dz2. z2. Plus, what is shape of d orbitals? dumbbell. डबल डंबल. प्लस अगर ये डंबल है, राइट, तो ये क्या है? डबल डंबल. Yes. तो प्लस सिर्फ इसका शेप छोड़ के, किसका dz2 का शेप छोड़ के सबका शेप कैसा है? डबल डंबल. Double. और z2 का शेप कैसा है? डंबल विद Dumbbell. स्प्रिंग. बराबर है? याद है? Yes. यहाँ पे हमारे पास डायग्राम ड्रॉ किया है ऑलरेडी, ऊपर देखेंगे. तो dx ऑर्बिटल का मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने? 10. 10. तो थर्ड सेल कैपेसिटी मैक्सिमम 18 16 electrons. प्लस 18 काउंट करो. 2 + 6 + 10, 2 + 6 + 10 कितने होते हैं बच्चे लोग? 18. 8 electrons. Plus if you go in 18. fourth, if you go in fourth shell, the fourth shell has S subshell, P subshell, D subshell and F subshell. subshell, right? yes sir. S subshell, P subshell, D subshell and F subshell. Plus F subshell has only one orbital, right? Which only one orbital. Which of that orbital is S orbital, right? It has only one orbital, S orbital. नाम क्या देंगे इसका हम लोग? 4s orbital. Okay, P में 4px, एक होगा 4py, 4pz. Okay, D सबशेल में 4dxy, बोलते जाओ 4dyz, dz.
for For- the xz, for the x2 y2, for the z2. राइट टू हाँ प्लस एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 राइट बट वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर देयर नेम्स एंड देयर शेप्स दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड द शेप इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड क्या बोलते हैं इसका शेप हम लोग थ्री डायमेंशनल Three-dimensional Three-dimensional complicated. complicated. या फिर थ्री डायमेंशनल diffused. So class in any exam, nobody is going to ask you the shape of f orbitals, right? आपको इतना याद रखना है. F subshell has how many orbitals? 7 orbitals. Seven orbitals. F subshell has 7 orbitals. Okay, उनके नाम हमें याद नहीं रखने. Okay, plus if I ask you question, ये 2px, 2py and 2pz तीनों का एनर्जी सेम होता है डिफरेंट होता है? 2px, 2py, 2pz तीनों का एनर्जी सेम या डिफरेंट है? Energy of 2px, 2py and 2pz is same or different? Same. Same. Plus डिफरेंस क्या होता है यार इन डिफरेंट डायरेक्शन राइट स्पेस में अलग अलग जगह पे पर उनका सबका शेप सबका एनर्जी एग्जैक्टली क्या होता है सेम होता है तो क्लास उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं केमिस्ट्री में Degenerate orbitals. डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्लास सिमिलरली 3px 3py 3pz इनका सबका शेप एंड एनर्जी क्या होगा सेम होगा राइट Same. तो ये भी कैसे बोलो Same. डीजेनरेट है राइट Degenerate orbital. प्लस सिमिलरली dxy dyz dxz dx2y2 dz2 सबका एनर्जी क्या है सेम है Same है. आटो ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है सो दे आर आल्सो Degenerate. डीजेनरेट ओके प्लस सिमिलरली ये सेन ऑर्बिटल इनका सबका एनर्जी क्या है सेम है दे आर आल्सो Degenerated. डीजेनरेट ऑर्बिटल ओके आर यू क्लियर एवरीवन Yes. ओके तो क्लास अभी हम लोग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं okay and that part you require for many chapters in chemistry and that topic is quantum numbers अब ये क्वांटम आए कहाँ से तो क्लास अगर क्वांटम कहाँ से आया वो पता करना है तो उसके लिए एक जेडब्ल्यू के लिए और नीट के लिए क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके नोबडी गोइंग टू आस्क यू दिस इन योर बोर्ड एग्जाम कोई भी चांस है अपने बुक में लिखा भी नहीं है बुक में सिर्फ नाम लिखा है तो क्लास एक इक्वेशन है इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्लास मैं जो पार्ट की बात कर रहा हूँ ओनली दो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर जेडब्ल्यू नीट बाकी किसके लिए सीट वाले को बिल्कुल काम का नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ठीक है तो क्लास आपको याद है एक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक अ वेव Wave. डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस राइट इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जैसा भी काम कर सकता है और वेव जैसा भी काम कर सकता है राइट तो क्लास इफ आई कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज अ वेव मैं इलेक्ट्रॉन को वेव जैसा ट्रीट करता हूँ राइट वेव पार्टिकल ड्युअलिटी आपको है ना इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव तो क्लास तो हम वो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन प्लस बिलीव मी दिस इक्वेशन का डेरिवेशन इज ऑफ 6 पेजेस एंड डिग्री के बच्चों को भी इक्वेशन प्रूव करने के लिए नहीं 15 मतलब अप टू बीएससी ये एमएससी में प्रूव करने के लिए आता है तो बहुत लेंदी इक्वेशन है तो आपको सिर्फ इक्वेशन वो भी सिर्फ जेडब्ल्यू के लिए और नीट के लिए जो लोग प्रिपेयर करें उनके लिए सिर्फ इक्वेशन आपको याद रखना है तो इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर ओके आपको इंग्लिश लेटर डी मालूम है राइट वैसे ग्रीक में क्या होता है डेल होता है क्या होता है डेल आपको अल्फा मालूम है बीटा गामा डेल्टा ओमेगा वगैरह मालूम है ऐसे ग्रीक का एक लेटर है इसका नाम क्या है डेल ओके क्लास ये ग्रीक में लेटर इसको बोलते हैं हम लोग साई बोलो एक बार जोर से इसको कैसे लिखते हैं हाँ तो क्लास आप बोलोगे ये सब क्या है तो क्लास ये सच में आपको बिल्कुल याद रखना सिर्फ जेडब्ल्यू के लिए इक्वेशन आपको आता है सिर्फ इक्वेशन आपको देख के पता करने को आता है वो मोर देन सफिशिएंट आपको इक्वेशन ठीक है तो इक्वेशन क्या है डेल स्क्वायर आपको डेरिवेटिव कभी सुना है अपने नाम डेरिवेटिव्स यस एनीवन
हेलो सॉरी स्टूडेंट, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन आप देख लो, मतलब ऐसे ही बिलीव में ये आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में ये नाम लिखा है कौन सा, सॉल्जर इक्वेशन। तो इक्वेशन होता क्या है, तो जेडब्ल्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन क्या आते हैं वो भी बताता हूँ आपको मैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। प्लस इनको लगता है डिफिकल्ट है, बिल्कुल टेंशन मतलब नहीं करना है तो मत करो ये। ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। क्लास इक्वेशन आपको जस्ट याद रखना है, एंड यू जस्ट नो आपको क्या याद रखना है इसमें से, इसमें इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स है, ठीक है? इक्वेशन में क्या सर क्या है आप बोलिए ना। सर वो जो आपने एच स्क्वायर लिखा है वहां पे एन स्क्वायर भी आएगा साथ में। कहाँ पे एन स्क्वायर आएगा? सर वो आपने लिखा ना 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, वो नहीं, एच बिल्कुल स्क्वायर के साथ में एन स्क्वायर भी आएगा। नहीं आता। कहाँ पे देखा आपने साइंस वाला इक्वेशन सॉल्वर? सर मैंने लिखा है यहाँ पे इसलिए मैं पूछा। नहीं, एन स्क्वायर नहीं आता, एच एन स्क्वायर तो पक्का नहीं आता। जितना होने की कोशिश मैं अभी तक सॉल्व किया वहाँ पे तो मैंने एन स्क्वायर कभी भी नहीं देखा अभी तक। तो आप एक बार क्रॉस चेक करो किधर, तो नेट पे या फिर कहाँ पे जाके या फिर कोई भी बुक में। आई डोंट हैव सीन फाइन एनी सर, एन स्क्वायर। ओके फाइन सर। ओके चलेगा। देख तो मैं भी चेक करता हूँ, नो डाउट, मतलब ऐसा नहीं है, मेरे से गलती हो सकती है, पर मुझे तो अभी तक जो याद है मैंने एन स्क्वायर कभी देखा नहीं है। ठीक है, सिर्फ एच स्क्वायर होता है, ठीक है। प्लस एन स्क्वायर क्यों नहीं था उसका रीजन बताता हूँ मैं। ये इक्वेशन कितने इलेक्ट्रॉन के लिए है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए, बता रहा है? हेलो, तो एक Yes, इलेक्ट्रॉन sir. है तो उसका एन तो फिक्स ही रहेगा, तो उसमें एन स्क्वायर नहीं आएगा। ये सब तो फिर भी मैं आपको चाहिए तो एक बार चेक करता हूँ, पर 99% मैं तो बोलता हूँ 100% वहाँ पे एन स्क्वायर नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे ई स्टैंड फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? ये क्या है? ई स्टैंड फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे वी स्टैंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको इतना आता है काफी है, ये जो टर्म लिख रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, प्लस ये आपको अगर डेरिवेटिव का भी सुना है डी बाई डी एक्स, अभी देखा आपने कभी डेरिवेटिव? मैथ्स में डेरिवेटिव टर्म देखा किसने आपने? Yes. Yes, sir. तो यहाँ पे डी बाय डी एक्स मतलब होता है डेरिवेटिव तीन डायरेक्शन में, कौन से? एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड पे। तो क्या डेरिवेटिव कैसा है? थ्री डायमेंशनल है, तो इसलिए इंस्टेड ऑफ डी की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? डेल यूज करते हैं, क्योंकि थ्री डायमेंशनल डेरिवेटिव है, बराबर है। एक्स एक्सिस, तीनों एक्सिस हम लोग एक साथ ले रहे हैं, लीनियर नहीं है ये, कैसा? थ्री डायमेंशनल है, एक्स वाई जेड है, इसलिए डेल की जगह पे क्या लेते हैं हम लोग? डेल लेते, राइट। तो बस इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। क्लास यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन बोलो? एक्स, राइट। दूसरा वाला क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन वाई, और तीसरा क्या होगा? सेकेंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन Z. प्लस एक क्वेश्चन लिख लो सब लोग किधर, तो थोड़ा इक्वेशन अपने बुक में नहीं है जिनको, एक मिनट बच्चों लोग, आई विल कम बैक इन वन। क्या होगा इक्वेशन ये? ओके, तो क्लास अगेन जो लोग को नहीं याद रखना, डोंट वरी, ये इक्वेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो भी जेडब्ल्यू नीट में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत कम चांसेस है, बट स्टिल यू शुड नो दिस। ओके, तो क्लास इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो क्लास यहाँ पे जो साई है ना, दैट रिप्रेजेंट
एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव क्या बताता है वो? एवरीवन बोलो। Amplitude of electron wave. अगर साई का कुछ मतलब होता है, अगर हम साई को मल्टीप्लाई करते हैं साई से तो प्लस क्या बनेगा? साई स्क्वायर। साई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? साई से, तो क्या मिलता है? साई स्क्वायर। तो प्लस ये बोलता था आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी। क्लास क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग का प्रोबेबिलिटी को हम लोग? इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग? Node. where we can find the electron is called as the orbital। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला? ऑर्बिटल वगैरह होते हैं, कहाँ से मिला आपको इंफॉर्मेशन? फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हमें पता चला ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है एवरीवन, बोलो क्लास कुछ तो। Yes, sir. यस सर। क्लास अगेन फॉरगेट, अगर अभी जितना भी लेक्चर हुआ आज तक का ये इक्वेशन से आपको लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, लिटरली फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स। लेट अस कम टू द टॉपिक व्हिच इज इन योर टेक्स्ट बुक। हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा, दैट इज क्वांटम नंबर्स। क्लास इसको अभी सॉल्व करना है, साइंस को जो सॉल्व करते हैं एस के लिए, पी के लिए, डी के लिए, तो जो लोग जेडब्ल्यू एडवांस देने वाले एग्जाम उनके लिए इसका भी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको चाहिए तो मैं बाद में सिखा दूंगा, जिनको चाहिए एडवांस के लिए, मेंस तक तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे बाद में। अगर आपको रिक्वायर्ड है, किसी को लगता है कि मुझे बहुत डिटेल में सीखना है कौन सा इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो वी कैन सी दैट। पर क्लास इतना बेसिक जो लिखा है सामने किसको क्या बोलते हैं उतना अगर याद रखोगे, दैट इज अगेन मोर देन सफिशिएंट। क्लास होप मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? यस श्योर? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं क्वांटम नंबर्स। प्लस क्वांटम नंबर्स क्या होता है? तो क्वांटम नंबर्स आर सम सिंबल्स व्हिच गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर कुछ ऐसे सिंबल्स होता है जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या देते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं। तो प्लस टोटल देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। तो पहला क्वांटम नंबर है जो आपने ऑलरेडी सीख चुके हैं, अगर आपको याद है तो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिंबल उसका है स्मॉल एन। क्लास एनीबॉडी स्मॉल एन देख के इसका कोई और नाम है मालूम है आपको? एनी अदर नेम फॉर दिस एनीबॉडी? Shell. चल वेरी गुड, या फिर ऑर्बिट। Orbit. वेरी चल या फिर ऑर्बिट। तो क्लास what information I get if I know the symbol for n? तो if I say n equal to 1, बोलो क्या क्या इन्फॉर्मेशन बता सकते हो आप? n equal to 1, फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। नहीं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है। Hydrogen. इलेक्ट्रॉन एक शेल फर्स्ट शेल में है, तो पता चलता है शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, या फिर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन विच शेल, राइट? द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ओके, तो अगर मैं लिखता n equal to 6 तो क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 6th शेल। इफ आई राइट n equal to 3, अब क्या बताते हैं मुझे बताओ? इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द Contain third shell. थर्ड सेल। Okay. मतलब अगर आपको मालूम है n का वैल्यू क्या है तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में प्रेजेंट है, हाँ या ना? यस सर। प्लस फर्स्ट इंफॉर्मेशन, प्लस क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या देता है? इलेक्ट्रॉन का बायोडाटा बताता है। तो n equal to 3 से क्या पता चला आपको? द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। एनीबॉडी कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है ऐसे n से? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स Radius of that the can be, that can be present। आपका आंसर बता रहा है रेडियस वाला भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन गिवन शेल। बता रहा है? क्लास फॉर्मूला बताओ। 2n स्क्वायर। वेरी गुड, 2n स्क्वायर, राइट? तो इफ आई से n इक्वल टू 6 क्या होगा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे n इक्वल टू 6 में? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो 2 into 6 स्क्वायर, राइट? 72 बराबर ना बच्चों लोग?
Yes, sir. ओके तो क्लास अगर आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन कौन सा शेल में है, n का वैल्यू मालूम है, तब बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन गिवन शेल. आर यू क्लियर? Yes, sir. ओके गुड. क्लास तीसरा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, सबको मालूम है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन शेल, राइट? एनीबॉडी रिमेंबर द फॉर्मूला? एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन शेल. सबको मालूम है, कितना बार कर चुके हैं हम लोग. तो व्हाट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल? आप फाइंड कर दो फॉर्मूला En इक्वल टू, अभी याद आया, minus 13 point Yes, sir. 13.6 into z square upon I square. अपॉन n स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर आपको मालूम इलेक्ट्रॉन का n इक्वल टू क्या है, n का नंबर क्या है, तब बता सकते हो उसका एनर्जी वहां पे कितना है, एवरेज एनर्जी, हाँ या ना? Yes, sir. तो इफ आई से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द फिफ्थ शेल ऑफ हाइड्रोजन, आप बोलोगे अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फिफ्थ शेल में, तो उसका एनर्जी फिफ्थ शेल में कितना होगा? E5 इज इक्वल टू -13.6, हाइड्रोजन का Z 1 है, फिफ्थ शेल बोला तो अपॉन 5 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनी डाउट हियर? No, sir. बस मैं आपसे एक बार क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत बेसिक क्वेश्चन. क्वांटम नंबर्स का यूज क्या होता है? क्वांटम इलेक्ट्रॉन का अपने को क्या बताता है? कुंडली बताता है, बराबर? हर एक इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में, बराबर ना? अगर मुझे n मालूम है तो मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में कितना इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ? देखो अभी तक लिखा है, एवरीवन. Yes. ओके. Yes, sir. एक मिनट बच्चे, एक जस्ट अ मिनट. हेलो बच्चे लोग. हाँ क्लास, और एक इन्फॉर्मेशन बताओ क्या दे सकते हैं हम लोग? एनीबॉडी? कोई और इन्फॉर्मेशन? Velocity of electron. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. उससे पहले रेडियस ऑफ ऑर्बिट, राइट? व्हाट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट? 0.529 into n स्क्वायर अपॉन z, बराबर है? Yes, Yes, sir. sir. So if you know electron present in which shell, you can tell the average distance of electron from nucleus. You can tell the radius of orbit. If I say electron of hydrogen present in ninth orbit, अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन 9th ऑर्बिट में चला गया है, you can say radius of ninth orbit R9. बच्चों लोग बोलो कितना होगा R9? 0.529 into 9 स्क्वायर. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम. Is it clear? Yes. So we can tell, okay, the radius of nth orbit plus the next information you can give velocity of electron in given orbit, right? Vn. Bolo. 2.18 18 into 10 raised to 6 into Z by n. मीटर पर सेकेंड, राइट? तो बस तो इतने इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं क्वांटम नंबर से. कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से. ओके. प्लस यू कैन आल्सो टेल द साइज ऑफ ऑर्बिटल. क्लास इफ आई आस्क यू सेकंड ऑर्बिट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, हां, इफ आई टेल यू फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल में बड़ा कौन है, आपका आंसर क्या होगा? व्हिच इज बिगर शेल से, फर्स्ट और सेकंड शेल? First shell. कैसे बच्चे लोग? Second. प्लस देखो, दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, व्हिच इज बिगर? सेकंड शेल. Second. प्लस कौन सा फॉर्मूला करें आप? Rn वाला, राइट? देखो Yes, आप, sir. तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. अगर n का भी बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या होगा शेल का? बढ़ेगा. बढ़ेगा ना. हाँ, तो दिस आल्सो यू कैन टेल अप फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके. तो क्लास बिफोर आई टेल यू नेक्स्ट क्वांटम नंबर, मुझे तो यहाँ पे आपको कोई डाउट है तो इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इफ यू एनी डाउट प्लीज आस्क इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर.
किसी को पूछना है प्लीज। सर जैसे ग्रीक वर्ड में पाई की वैल्यू 3.14 है, तो वैसे डेल और फाई की भी वैल्यू है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, देखो डेल, आप किसकी बात कर रहे हो? डेल की बात कर रहे हो? यस सर। तो मुझे तो फाई का वैल्यू कितना है? 3.14, राइट? यस हाँ, तो ये फाई तुम क्या यूज कर रहे हो? सिंबल यूज कर रहे हो ना, सिंबल। यस सर। तो उसमें वो 3.14, अगर ये तुम पाई सिंबल देखो, इफ आई टेल यू दिस पाई सेम सिंबल इज इन केमिस्ट्री एज ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसमें वाले 3.14 नहीं है। तो फाई देखो, फाई क्या इज? इट इज अ सिंबल यूज फॉर सम टर्म इन मैथमेटिक्स, राइट? तो तुम यस वहां पे सर। यूज करते हो। इफ यू यूज दिस इन मैथमेटिक्स देन इट इज 3.14. इफ यू यूज इन समवेयर एल्स इट इज नॉट 3.14. आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके सर। वो देखो, ये सिंबल्स है, वो सिंबल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं इसके ऊपर उसका वैल्यू डिपेंड होता है, राइट? तो सर उसकी वैल्यू क्या है वैसे? see here, psi in chemistry, psi is not mathematical term, right? वो क्या डेरिवेटिव है, बराबर ना? यस सर। हाँ, मुझे तो अभी डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होता है उसको सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। d by dx है ना, you have to solve this equation. This is not a constant, it is a variable, d by dx. Try to understand, वो मैथ्स वाला टर्म नहीं है तुम्हारा, कांस्टेंट नहीं है। ओके So सर। don't get confused between mathematics and chemistry. एक्चुअली तुम लोग को जब डेरिवेटिव चैप्टर हो जाएगा ना तब पता चलेगा ये क्या होता है, कौन सा, ये वाला पार्ट। अभी फिलहाल इसको भूल जाओ फॉर टाइम बिंग ना। हम लोग ये सब जो निकाल रहे हैं वैल्यूज, एनर्जी का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू, ये सब कैसे आते हैं? वो इक्वेशन को सॉल्व करके आते हैं, राइट? एंड बिलीव मी, वो सॉल्विंग वो इक्वेशन इज नॉट इजी, इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दोस इक्वेशंस, श्रोडिंगर इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ तक ठीक है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यस स्टूडेंट? मैं आगे बढ़ू? यस sir. सर। Okay. So class, next quantum number we have to learn is azimuthal quantum number. Plus remember, quantum numbers are symbols, huh, which are given to give some information about electron. Azimuthal quantum number इसका और एक नाम होता है subsidiary quantum number. ओके, उसका सिंबल होता है L। क्या सिंबल होता है? L। तो अभी केयरफुली सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। तो azimuthal, दिस इज सेकंड क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देगा। तो प्लस अगर आपको L का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको N मालूम होना जरूरी है। तो विदाउट N हम लोग L की बात नहीं करते। क्या बोला मैंने? विदाउट N हम लोग L की बात नहीं करते। तो क्लास याद रखो, वैल्यू ऑफ L इज ओनली फॉर, बोलिए, गिवन वैल्यू ऑफ N। तो आपको जब तक N का वैल्यू दिया नहीं रहेगा हम लोग L की बात, क्लास आप हो यहाँ पे, जब तक हम लोग क्या मालूम नहीं है, N मालूम नहीं, हम लोग L की बात नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे L क्या होता है? फॉर गिवन वैल्यू ऑफ N, आपको जो N का वैल्यू दिया उसके ऊपर L डिसाइड होता है। प्लस कैसे होता है? तो उसका फॉर्मूला है, तो वैल्यू ऑफ L होता है 0 से लेके n-1 तक। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस। L का वैल्यू क्या होता है? 0 से लेके n-1 तक। वैल्यूज ऑफ L आर 0 to n-1। प्लस पहले ये फॉर्मूला बाहर करो, L का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? 0 से लेके n-1। हाँ, तो लाइफ ऐसे n इक्वल टू 1। क्लास आप किसकी बात कर रहे हो बताओ मुझे? फर्स्ट सेल। फर्स्ट शेल के। तो क्लास उसके L के वैल्यू क्या हो गया बताओ मुझे? 0 से लेके
n माइनस वन क्लास n का वैल्यू कितना 1 है, तो 0 माइनस बोलो 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 1, तो क्लास कितना आंसर आएगा? 0 0 तो क्लास कितनी वैल्यू हो गया एल की? सिर्फ एक ही होगी ना, 0 सिर्फ 0 एक ही वैल्यू हो गया एल का, कोई और वैल्यू नहीं। हाँ क्लास नेक्स्ट थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, यहाँ पे 0 कोई नंबर नहीं है क्लास, केयरफुल है सब लोग, 0 यहाँ पे नंबर नहीं, 0 यहाँ पे क्या है? सिंबल है, बोलो जोर से, 0 क्या है यहाँ पे? सिंबल है। symbol क्लास L इक्वल टू 0 सिंबलाइज, L इक्वल टू 0 सिंबलाइज करता है, आप बात करो किसकी? S subshell एस सबशेल की। तो अगर आपको L का वैल्यू 0 आता है तो आप किसकी बात कर रहे हो? बोलो एस सबशेल की, S subshell एस सबशेल की। तो क्लास में बताओ फर्स्ट शेल में आपको L का कितना वैल्यूज मिला? डोंट से 0, 1 कितना वैल्यू मिला आपको? एक ही मिला, कौन सा? 0 0, मतलब फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है, कौन सा? एस सबशेल। एस सबसेल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लास, थोड़ा सा यहाँ पे आज थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा पर आप समझने की कोशिश करो तो बहुत इजी है। क्लाइफाई से n इक्वल टू 2, तो बच्चे लोग बोलो n इक्वल टू 2 होगा तो L का क्या होगा बताओ मुझे? 0 0 टू to 1 2 माइनस 1 राइट। L का कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 0 से लेके 1 तक 1 तक, तो L का एक वैल्यू 1 0 होगा, तक। L का एक वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 1 तो क्लास में बताओ L इक्वल टू 0 आपको क्या बोलता है? L इक्वल टू 0 मतलब आप बात कर रहे हो कौन से? एस सब S एस subshell सबशेल की। L इक्वल टू 1 इंडिकेट्स P सबशेल P सबशेल। क्लास मतलब सेकेंड शेल में कितने सबशेल से बोलो? 2 तो टू एस सबशेल एंड पी सबशेल। तो क्लास में क्वेश्चन पूछता आपको, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका n इक्वल टू 2 है, मतलब कहाँ पे बच्चे लोग वो सेकंड सेल शेल में, और इसका L इक्वल टू 1 है, मतलब कहाँ पे वो फर्स्ट P subshell P सबशेल में बच्चा, L इक्वल टू 1 बोला मैंने। प्लस आप इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ढूंढ रहे हो, समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का n इक्वल टू है और L इक्वल टू 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू मतलब वो सेकेंड शेल में है और L इक्वल टू मतलब वो सेकेंड शेल के p सब शेल में। तो अगर मैं मतलब n इक्वल टू 2 है और L इक्वल टू 0 है, मतलब आप जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो वो n इक्वल टू L इक्वल टू 0, मतलब बताओ आप जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो सेकेंड शेल के subshell s सब शेल में। सबसेल में ये समझा आपको? यस सर हाँ तो इफ आई राइट n इक्वल टू 3, बोलो L का वैल्यू क्या क्या आएगा? 0 टू 2 3 माइनस 1 राइट, 0 टू 3 माइनस 1 0 प्लस, to तो आपको एक वैल्यू आएगा 0 बराबर है, एक वैल्यू आएगा, दूसरा Yes. बोलो 1 1 दूसरा 2 राइट। हम्म। अब मैं बताता 0 आपको मालूम है 0 क्या होता है? S subshell। सबशेल L equal to 0 is L equal to 0 is the symbol for S subshell, L equal to 1 is symbol for सबशेल P subshell, और ये तो आपको मालूम रहेगा भी L equal to 2 is symbol for डी P सबशेल subshell P subshell। तो लास्ट थर्ड शेल में कितने सबशेल्स होते हैं? 3। 3 कौन सा? S subshell, P subshell एंड डी D सबसेल P subshell एंड सो ऑन। क्लास फोर्थ शेल में जाते हैं, चलो n equal to 4, बोलिए L equal to 0 to 3 माइनस 1, क्लास 0 को भूलना नहीं है, प्लस 0 नंबर है सिंबल है, 0 नंबर है सिंबल है यहाँ पे, सिंबल सिंबल है। L equal to 0, L equal to 1, sir 4 L minus equal 1 to L equal to सर वहाँ पे 3 4 minus 1 आएगा। कहाँ पे? हाँ सॉरी 4 माइनस 1, सॉरी हाँ बोलो। हाँ तो क्लास बोलो पहला L equal to 0 S S सबशेल S राइट, एस सबसेल 1 बोला तो डी subshell सबसेल P सबशेल, 2 बोला तो डी D सबसेल सबशेल A सबशेल, और 3 बोला तो एफ एफ सबसेल सबशेल S सबशेल। ओके तो इलेक्ट्रॉन के फोर्थ शेल में कितने, अगर आप फोर्थ शेल की बात कर रहे हो तो फोर्थ शेल में S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल एंड F सबशेल होते हैं राइट। yes sir ओके तो क्लास दिस इज अबाउट द फोर्थ शेल। तो सर क्लास हाँ बोलिए सर फोर्थ शेल का नहीं समझा आपने, जो एल का वैल्यूज दिया। कैसे दिया है? ओके मैं तो L का फॉर्मूला क्या होता है? 0 टू n एन माइनस 1 ना, माइनस 1 तो n का वैल्यू कितना बचा है यहाँ पे? 4 है ना, 4 तो L का वैल्यू क्या होगा बच्चों लोग? 0 टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है? 3 3।
तो एल का वैल्यू क्या होगा, 0 से लेके 3 तक होगा, तो एल का वैल्यू 0 होगा। देखो 0 2 बीच में कौन सा ये लिखा है, 2 लिखा है ना बच्चा, 2 मतलब क्या, 0 से लेके 3 तक। ठीक है। एल का वैल्यू 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा। अभी भी नहीं समझा? हाँ सर समझे। Good. हाँ एवरीवन। Yes, if I ask you value of L and subshell, तो अगर आपको L का वैल्यू 0 आता है, इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है? S subshell. First. S 1 आता है subshell. तो E E subshell. 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 2 होता है तो D E subshell. subshell. 3 होता है तो F F subshell. subshell. आगे हमें बढ़ना भी नहीं है, इसके आगे हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो 0 1 2 3 SP DF। इज इट क्लियर? Yes sir. बस यहाँ पे गलती लोग क्या करते हैं, जब गिनते हैं ना वैल्यूज ऑफ एल तो 0 को भूल जाते हैं, 0 को मिस मत करना। 0 S देखो आपके कैसे करोगे, 0 मतलब S, 1 मतलब P, 2 मतलब D, 3 मतलब F। F। ठीक है, तो क्लास अगर मैं आपको बोलता हूँ अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपका पहला इन्फॉर्मेशन क्या मिलता है, बोलो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से? यहाँ पे देख के बताना मुझे, आई विल गिव यू टाइम। आपको अज़ीमुथल क्वांटम नंबर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? तो पहला इन्फॉर्मेशन, कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन है? वेरी गुड, परफेक्ट। कुछ और? तो पहला इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है नंबर ऑफ सबशेल्स, राइट, इन गिवन प्रिंसिपल शेल। क्लास एग्री करते हैं आप इसको इससे? चलो देखते हैं, गिवन प्रिंसिपल शेल। तो अभी लिखा आपने, मुझे तो फर्स्ट शेल में कितना सबशेल है? एक ही है, बराबर है। सेकेंड शेल में 2 है, 2, थर्ड शेल में 3, 3 है, फोर्थ शेल में 4. 4 है, बराबर है। तो आपको पता चल रहा है कि गिवन सबशेल में कितने सबशेल्स है, हाँ या ना? yes sir. एवरीवन, Yes. so we come to know number of subshells in given principal shell. Now दूसरा information, subshell to which electron belongs, subshell to which electron belongs. So class, if I tell you L equal to 0, electron belongs to First cell. Yes, sir. Subcell. S subcell. S subshell. If I say L equal to 1, E subshell. D subshell. E subshell. L equal to 3, D subshell. नहीं बच्चा, L equal to 3, जान बच्चे बोला L equal to 3, F subshell, L equal to 3, F subshell। हाँ, तो क्लास आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन समझा, कौन से सबशेल में Yes, इलेक्ट्रॉन sir. प्रेजेंट है, और दूसरा अगर आपके पास प्रिंसिपल शेल मालूम है आपको तो उसमें कितने सबशेल हो सकते हैं, बराबर है। Yes sir. तो तीसरा इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगेन आपको इसको बाहर करना है सिर्फ, ऑर्बिटल, इसके और क्वेश्चन बहुत आते हैं एमसीक्यूज में। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका सिंबल होता है कैपिटल एल, या फिर एंगुलर, ये लिखने का तरीका सिर्फ अलग है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सबशेल। तो अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इसका फॉर्मूला है, आपको सिर्फ फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। द फॉर्मूला इज कैपिटल एल स्टैंड फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ Moment. इलेक्ट्रॉन। तो आपको सीधा फॉर्मूला करना है, L इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर JEE एंड नीट, h अपॉन 2 पाई रूट ऑफ L into L plus 1। I'll explain how to use this in MCQs। इसको MCQ में यूज कैसे करते हैं वो बताता आपको मैं। तो अगर बोलता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन है अगर 4s में, प्लस 4s मतलब बताओ बच्चे लोग कहाँ पे, बोलो 4 शेल के
S subshell. s ऑर्बिटल एस सबशेल बच्चा लोग, ये 4s सबशेल होता है राइट, 4 शेल के एस सबशेल। क्लास एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एस ऑर्बिटल बोला तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। 4 शेल के कहाँ पे? एस सबशेल में। तो माय क्वेश्चन इज टू ऑल ऑफ यू, उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन 4 शेल के एस सबशेल में है, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? क्लास यहाँ पे एल स्टैंड फॉर व्हाट? एजिमुथल क्वांटम नंबर। चलो देखते हैं, क्लास इजी है पर देखते हैं, मतलब इतना फटाक से क्लिक होने का चांसेस बहुत कम है। मुझे आप बताओगे 4s सबशेल में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है? h/2 h/2 ओके, थोड़ा क्लोज से आप, नो प्रॉब्लम। चलो कोई और ट्राई करना चाहता है, करो, 1 मिनट लो और। प्लस पहला क्वेश्चन आपके लिए, 3h2 pi. प्लस इस इलेक्ट्रॉन का सबशेल कौन सा है? एस सबशेल ना, तो फॉर एस सबशेल हम लोग एल का वैल्यू कितना लेते हैं? 0 0। चेक करो, 0 लेते हैं ना, एस सबशेल एल का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। क्लास सपोर्ट एल इक्वल टू 0 या h/2 पाई रूट के अंदर 0 इंटू 0 प्लस 1। क्लास एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर कितना आता है? 0। आंसर है 0। तो क्लास दिस इज आंसर। क्लास ऑप्शन आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, which of the following is an orbital angular momentum of 4s electron? तो क्लास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन क्या होगा? 0 होगा। आई होप इट इज क्लियर। यस सर चलो तो एक आप दूसरा ट्राई करो, 3D के लिए फाइंड करो। इलेक्ट्रॉन 3D में है तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? फाइंड करो 3D में, 3D। क्लास शायद आपको लेक्चर थोड़ा लेंदी लगे, पर दिस थिंग्स आर रियली रिक्वायर्ड फॉर योर JEE। अगर हम टेक्स्ट बुक देखेंगे अपना स्टेट बोर्ड का, तो क्लास उसका 20% भी आप नहीं कर पाओगे JEE क्वेश्चन। ओके, तो वी नीड टू गो इन डिटेल। करना है ना आपको, डिटेल में जाना है ना या नहीं? कोई नहीं बोल रहा, मतलब नहीं जाना है। जाना है सर। जाना है सर। Yes sir. 3D h/2 pi root 6. लेट्स चेक। तो डी सबशेल बोला तो यहाँ पे सबशेल कौन सा है? डी सबशेल है, बराबर है। Yes sir. प्लस यहाँ पे शेल थर्ड है, बराबर ना, तो सबशेल कौन सा है? डी सबशेल। तो प्लस फॉर डी सबशेल ठीक है sir. एल इक्वल टू क्या होता है? 2. मतलब बहुत सारे 3 बोलेंगे। क्लास याद रखो, कैसे याद रखने का? सीधा लिखने का, 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी। कीप ऑन राइटिंग, ये लिखो, क्योंकि कभी कभी कहते हैं हम लोग 0 स्किप कर देते हैं और मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना, एल का वैल्यू कितना है? 2 है। तो क्लास इफ आई पुट इन द फॉर्मूला एल इक्वल टू h/2 पाई रूट ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1, राइट? Yes sir. h/2 पाई रूट 6। बच्चे लोग बना ना, रूट 6 ना, Yes sir. यस सर Yes. तो इतना लिखा तो भी चलेगा, या फिर इसको और करना है तो कर लो बाद में, ठीक है, चलेगा। यस सर So this is about what? Azimuthal quantum number। तो क्लास हमें 3 इंफॉर्मेशन मिलता है azimuthal quantum number से। पहला, इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में प्रेजेंट है। दूसरा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल शेल में प्रेजेंट है तो उस शेल में कितने सबशेल्स होते हैं। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, बराबर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एनी डाउट? No sir. हाँ, प्लस एक क्वेश्चन और है, एल का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या मालूम होना चाहिए? N. एल। द वैल्यू ऑफ एल इज, देखो मैं वापस बोलता हूँ इंग्लिश में, एन वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन। उस एन का एल फाइंड करते हैं हम लोग, राइट? अगर आपको एन मालूम नहीं है तो हम लोग एल के बारे में बात नहीं नहीं कर कर सकते, सकते बराबर है। तो क्लास फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन खड़कपाड़ा पे रहता है, तो क्लास में रहता हूँ थाना में, तो थाना में खड़कपाड़ा हो सकता है कि नहीं?
पता है थाना थाना में भी खड़क पड़ा है, या फिर बोलता मैं विष्णुनगर, डोंबिवली में भी है, थाना में भी है और कल्याण में भी है। क्लास में जब तक नहीं बोलता कल्याण का, विष्णुनगर, डोंबिवली का है, थाना का, कैन आई टेल इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे है? No, sir. So that's why the value of L is always calculated for given value of n. Hope it is clear. क्लास नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारे लिए है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सिंबल क्या है उसका? स्मॉल m. So this quantum number was introduced to explain Zeeman effect. आपने नाम सुना Zeeman effect? Yes. क्या था? इन किसी को याद है? Meeting of spectral lines. In presence of Magnetic field. magnetic field. This was introduced to explain Zeeman effect. क्लास ये क्वेश्चन हो सकता है या थियरी क्वेश्चन, तो याद रखो magnetic quantum number was introduced to explain which effect? Your answer is to explain Zeeman effect. Plus next thing, अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करना है तो आपको L मालूम होना जरूरी है। तो वैल्यू ऑफ M इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर वैल्यू ऑफ M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ M is always calculated for given value of L। ठीक है, अगला समय बोलता हूं स्टूडेंट विष्णुनगर में रहता है, डोंबिवली के, डोंबिवली के विष्णुनगर में रहता है, पर क्लास वहां पे विष्णुनगर में समझो उसके कौन से बिल्डिंग में रहता है वो नहीं बताया, तो उसका एड्रेस ढूंढ पाएंगे हम लोग? नहीं ना। तो बस वैसे भी तो वैल्यू ऑफ M इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L। तो आपको मालूम है उसका L क्या है, अगर वो L मालूम है तो ही हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? M फाइंड कर सकते हैं। क्लास कैसे करते हैं? तो फॉर्मूला है M इज इक्वल टू माइनस L2 प्लस L। आई एक्सप्लेन दिस इंक्लूडिंग 0। डोंट वरी, मैं आपको बहुत इजीली बताता हूँ ये कैसे होता है। वैल्यू ऑफ M इज माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। वैल्यू ऑफ M इज माइनस L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। तो क्लास इफ आई से इलेक्ट्रॉन का L इक्वल टू 0 है, मतलब क्लास इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में प्रेजेंट है? बोलो। S सबसे S सबशेल में। तो अगर उसका आपका M फाइंड करना है तो क्लास कैसे करोगे M फाइंड? तो इसका L का वैल्यू कितना बताओ मुझे? 0 है। मैं लिखूंगा माइनस 0 2 प्लस 0। क्लास 0 प्लस माइनस होता है कभी? नो No. 0 होता है, राइट? तो क्लास अगर L इक्वल टू 0 है तो उसका M का आपको एक ही मिलेगा, कौन सा? 0. 0। क्लास 0 नंबर या सिंबल है? Symbol. सिंबल। तो M इक्वल टू 0 इंडिकेट्स व्हाट? S सबशेल में सिर्फ M का एक ही सिंबल है, मतलब क्या? S सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है? 1 ऑर्बिटल। क्लास एनीबॉडी नेम ऑफ दैट ऑर्बिटल? S S orbital. orbital वेरी गुड। इट हैज ओनली वन ऑर्बिटल। व्हिच ऑर्बिटल? S ऑर्बिटल। ओके, प्लस इफ आई राइट L इक्वल टू 1, बोलिए M का वैल्यू बताओ क्या क्या आएगा? माइनस L2 प्लस L। क्लास अगर मैं 1 डालता हूँ माइनस L, क्या मैं माइनस 1 डालता हूँ तो क्या क्लास क्या होगा? माइनस 1 से लेके कहा तक बोलो? प्लस 1 इंक्लूडिंग 0। तो क्लास माइनस 1 0 एंड प्लस 1। तो क्लास में बताओ L इक्वल टू मतलब कौन सा सबशेल? L इक्वल टू 1 मतलब कौन सा सबशेल? P subshell. L इक्वल टू मतलब P सबशेल, राइट? Yes. उसके लिए आपको M का वैल्यू कौन सा आया? माइनस 1 0 एंड प्लस 1। क्लास कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? P सबशेल में आपको M के 3 सिंबल मिले, मतलब P सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं।
px py and pz. समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? Yes, sir. क्लास if I write L equal to 2 क्लास कौन सा सबशेल? D सबशेल. Anybody can tell me M का लिए कौन सा आएगा? गेस करो. -2 -1 0 -1 0 +1 +2 चलो आपको M के कितने सिंबल मिले? 5 5 मतलब अगर आपका D सबशेल है तो उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, राइट? बराबर है? Yes. If I write L equal to 3 बोलते जाओ. -3 F -3 subshell. -2 -1 0 नहीं पहले L equal to मतलब सबशेल कौन सा? F सबशेल, हाँ। राइट? F सबशेल L equal to L की वाली बोल रहे हैं, N की नहीं बच्चे लोग, L की वाली बोल रहे हैं. L क्या बताता है? शेल या सबशेल? सबसेल सबशेल. L equal to 0 बोला तो S सबशेल, S राइट? सबसेल 1 बोला तो P P सबसेल 2 बोला तो D D सबसेल 3 बोला तो F सबशेल. सबसेल तो F आपके पास अगर F सबशेल तो उसमें M का क्या क्या आएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 -1 0 +1 +2 एंड +3 बराबर है. तो क्लास F सबशेल में कितने Yes, ऑर्बिटल्स sir. हैं? F सबशेल 7 ऑर्बिटल्स हैं. All 7 orbitals are of same energy, right? तो क्लास अभी ये कौन से होते हैं समझा? तो गिवन सबशेल में कितने सबशेल होते हैं? तो फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला और है, m इज इक्वल टू 2l + 1. प्लस का मतलब बता दो आपको. एक फॉर्मूला और है, m इक्वल टू बोलो 2l plus 2r प्लस 1. तो क्लास टेल मी l इक्वल टू, इफ आई से l इक्वल टू 0 विच सबशेल? S S सबशेल. तो m का लिए कितना आएगा? 1. मतलब f सबशेल में कितना ऑर्बिटल है सिर्फ? 1 बोलो कितना आएगा? 1. एक ही ऑर्बिटल आएगा. क्लास कौन सा ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल, राइट? और उसका सिंबल क्या होगा? m इक्वल टू 0. उसका सिंबल होगा m इक्वल टू 0, राइट? yes तो if I say l इक्वल टू 1 क्लास बोलो m का लिए कितना होगा? वैल्यूज ऑफ m बोलो डाल दो. 3 1 डालोगे तो 1 2 जा 2 2 + 1 3. तो वैल्यूज ऑफ m 3 आएगा. क्लास मतलब l p सबशेल में कितने ऑर्बिटल है? 3. क्लास कौन सा? सिंबल -1 0 एंड 0 +1. तो if I say l इक्वल टू 2 मतलब वैल्यूज ऑफ m क्या क्या होंगे बोलो? 5 5 5 होंगे. 5 2 का 4 4 + 1 तो वैल्यूज ऑफ m विल बी 5. क्लास कौन से होंगे वैल्यू ऑफ m? 5 -2 -2 -1 -2 0 +1 +2 0 +1 -2 -1 0 +1 +2. If I say l इक्वल टू 3 बराबर है तो वैल्यूज ऑफ m 7 7. कौन सा? -3 -3 -2 -2 +1 0 +1 +2 +2 +3. तो क्लास ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है कहाँ से? एजिमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से. इज इट क्लियर? yes sir तो क्लास में अभी रुकते तब एक सिंपल क्वेश्चन पूछ के जाता है सब पूरे लेक्चर का, मतलब एक हम लोग बोलते हैं समरी. प्रिंसिपल क्वांटम में हमें बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से डैश में प्रेजेंट है बोलो. प्रिंसिपल क्वांटम में बताता है हमें इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में सेल प्रेजेंट में है. वेरी गुड. ओके. एजिमुथल क्वांटम में बताता है हमें इलेक्ट्रॉन कौन से डैश में प्रेजेंट है? सबशेल मैग्नेटिक क्वांटम में बताता है गिवन सबशेल में कितने डैश है? ऑर्बिटल ये इतना सिंपल है, समझा आपको ये? yes sir नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वांटम नंबर्स है या सिंबल्स है? When I say L equal to 0, when I say L equal to 0, 0 is not a number there. L equal to 0 मुझे बताता है कि हम लोग बात कर रहे हैं. मैं 0 L का वैल्यू 0 ये सिंबल देता हूँ किसके लिए? S सबशेल के लिए, राइट? yes L का वैल्यू 1 सिंबल देता हूँ किसके लिए? P सबशेल के लिए. एंड सो ऑन. आर यू क्लियर? yes sir नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक क्वांटम नंबर के ऊपर 3 प्रिंसिपल सीखेंगे.
Okay, that is very important again, part of the chapter. We stop now. Thank you so much. सर हाँ बोलिए बोलिए. जरा फोर्थ क्वांटम नंबर कौन सा होता है? फोर्थ क्वांटम नंबर, हाँ वो बताऊंगा, वो उसको तो स्पिन बोलते हैं, स्पिन. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके सर. हाँ वो करेंगे, डोंट वरी. मैं आपको ये रिवाइज करके फोर्थ सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में. ओके. ओके Okay, sir. Thank you, sir. Thank बाय you, सर. sir. थैंक यू सर. हैव अ नाइस डे सर. बाय एवरीवन.